married. I was very lucky married. I was a queen. But suddenly there was some miseries to come in my life. From past 5 years, I'm applying each day. I'm coming every day morning 7:30, teaching people, healing people. All the team of the hospital came to me to know आपने ऐसा क्या किया कि pancreatitis patient का. हेलो एवरीवन, आज का पॉडकास्ट बहुत खास है। क्यों खास है? आज हमारी जो गेस्ट है, शी बॉर्न एज अ प्रिंसेस, लिव लाइफ एज अ क्वीन। और अगर मैं उनके बारे में और कहूँ तो अभी के बारे में, तो शी इज़ अ ग्रैटिट्यूड क्वीन। उनका मेन फोटे है मिजरीज टू मिरेकल्स एंड 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें इस लाइन में। तो हम बातें सुनकर आपको समझ आ ही रहा होगा, हम आज एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में ढेरों क्वेश्चंस हैं मन में, मेरे खुद के। मैं बिल्कुल आपसे दिल खोलकर बात करना चाहूँगी और उनसे भी दिल खोलकर जानना चाहूँगी। दे आर न्यूमरस क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारे कॉन्फिडेंस भी गेन होते हैं और हम उनसे ही जानना चाहेंगे। सो मिलवाना चाहूँगी आपको हमारी स्पेशल गेस्ट से। शी इज़ रोमी माकन। Welcome you here. Thank you so much. Thank you for coming here, and it's going to be really special with you today. That's my honor and privilege too. तो यस, हम बात करना चाहेंगे आज आपके बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, और शुरुआत करना चाहेंगे आपकी खुद की जर्नी के बारे में। सो बताइए प्लीज। Thank you so much. Basically, I would summarize in very few words, जिसको कि मैं बोलूँगी एकदम straight. That is, my name is Romi Markan. I'm a law of attraction coach and a Ho'oponopono healer. So modalities तो मैंने बहुत सीखी, life भी बहुत beautiful थी. हाँ जी। I was singing with Gurdas Maan. We were performing on the same stage. I was a dancer. Then I was a singer. So did many things. But somehow my life got stuck when I got married. I was very lucky married. I was a queen. But suddenly there was some miseries to come in my life, which made me to struggle for about 27 years. Okay. I should have blocked my marriage on the day one, maybe in the first month. But then it was a destiny that I was to stay there because I got pregnant in the first month. Okay. So I carried on and I thought, life was so beautiful. It was going wonderfully and in my favor. But there was something which brought me today where I am. Okay. Destiny? Yeah. हाँ. So when misery started pouring in, I was looking for solutions. What to do. So I saw Law of Attraction past 22 years back. I was introduced to Rhonda. She's Okay. my guru. Secret. Everybody knows about her. Yes. But I mastered it. I didn't read a book. I mastered every word I picked up and applied in my life, which now is a solution for any person. Whosoever comes to me, I have a solution for them. Okay. And from there, I put a name to my teachings, Miseries to Miracles. Okay. Just by reading books, or you like? Yeah, it was not just by reading books. Reading book was solutions I was looking for. Yeah. कि ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे ठीक होगा, कुछ तो सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अच्छी लाइफ में सडनली ये वाला मोड़ कैसे आ गया? हाँ जी। बट फिर जब सॉल्यूशन ढूंढते हो, देन यूनिवर्स हैज इट्स ओन वेज Yes. to guide you, to support you. But I was very aware soul, mainly from the past life. Okay. So because of that, whatever I was learning, I was implementing. That made me to learn because my coach is Nitesh Khatri. He tells me fail fast. Okay. So past 13 years, I've been trained by him. And all the miseries, more I was trying to come out of the miseries, more miseries were expanding and becoming bigger and bigger. But gradually, when I started applying techniques, miracles were there, but miseries were not getting over. So that's how, in the pandemic, it was epitome of my miseries. My son was to leave the world. He was to go on the ventilator. But anyhow, with divine grace, with using law of attraction, surrendering many techniques I learned, which is why I could easily come out of the situations. And then I was under a big debt. Everything went off. This is like
Pandemic. Yeah. Before that also, miseries were a lot. Cutting short, because I can keep on sharing for 24 hours. But nothing is to do with my miseries. How I created miracles is definitely going to give answers to our viewers. Yes, that how can they even transform their life. True. So from there, I got my coach. From past 5 years, I'm applying each day. I'm coming every day morning, 7:30, teaching people, healing people. So if you go to my YouTube channel, you'll find hundreds and hundreds and hundreds of people who are sharing their results. Oh, wow. From any trouble you bring in me, जो मैंने किया भी नहीं जिसके लिए काम, but whoever says, I used you as an instrument, and you bring the results. Yeah. सुना ही था अभी तक कि yes we are here in the society with some reason, for some reason, कुछ ना कुछ तो हमें वापस दे के जाना है, but how and which way, आपके लिए क्या चुना है ऊपर वाले ने, ये नहीं पता होता. बट सीरियसली रोमी जी, मैं आपको दिल से कहना चाहूँगी एक चीज़, मतलब ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, ठीक है, और बहुत सारे प्लस और माइनस हैं. इतने लोग इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, टैरो कार्ड एंड दे आर न्यूमरस, इतनी ऑप्शंस हैं. और अगर आज हम इंस्टा पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, तो हर समय वीडियोस है, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है. तो कभी कभी डर भी लगता है. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आते हैं मन में, कितनी रियलिटी है, किस पे यकीन करें, कौन ठीक है, और बहुत फेक एंड फ्रॉड भी है. तो मतलब थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप इसको भी ज़रूर कवर करें कि क्या मतलब जेन्युइनली सब कुछ होता चला जाता है, और अगर होता है तो कैसे चूज़ करें हम अपने लिए. आपने अपने लिए गुरु चूज़ किया, एक मेंटोर डिसाइड किया, लेकिन हाउ टू चूज़ राइट मेंटोर, राइट पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट करके, क्योंकि जब आप बात करते हो, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, तो आप हर चीज़ शेयर करते हो. तो क्या मतलब हम सच में ट्रस्ट करके सब कुछ बता सकते हैं और वो ठीक भी होता है? Actually, I also got many fake things in my life. But then I got my affirmation. When you'll come further, you will understand what is affirmation. Most people now know. Yes. I had an affirmation. I attract trustworthy people. Okay. Yes. So normally क्या होता है, हम डर के बात करते हैं, डाउट में बात करते हैं. हाँ जी. So everything in my universe, like जहाँ पे law of attraction की बात होती है, there is a frequency. So if you are having a fear, you're vibrating on a frequency of fear. Okay. What will you attract? Yeah. So when I started having my affirmation, I attract trustworthy people. फिर मुझे मितेश खत्री finally as a coach मिले, जिनको फिर मैंने 100% दिया. मतलब आज मैं जो भी हूँ, I would say कि he's my final coach in my life, who is my life coach for the lifetime. So I want my generations to go to him, because faith तभी आएगा. But actually आपका faith लाने के लिए he has given lot on the YouTube. You can go there. Along with that, now mine is from last 5 years. I'm teaching every day. I'm healing every day. Every day. Every day means not even one holiday in 5 days a week. So you've got all those YouTube. When you see people sharing their miracles, when you see people having faith in me, when you see people having blind belief in me, your interest will come. But if you don't have an affirmation, I attract trustworthy people, definitely. In law of attraction world, it doesn't work that way. Okay, fine. Got it. You have to vibrate on the frequency of what you want to attract. And when you have that frequency, definitely you will attract the right people. Okay. There are like numerous people when you go out, meet people doing something. So definitely जो आपने कहा, I can relate. This happens with me also. There are people who are negative, who have negative aura, negative mindset. So like I feel like I am blessed. Definitely जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, वो मिलते हैं, but ऐसे लोग अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं. Exactly. वो आ ही नहीं पाते आसपास. वो निकल जाते हैं हमारी लिस्ट से, कैसे कब आए कब चले गए हमें पता भी नहीं चलता. तो I can relate. You consciously law of attraction. Because now you understood that the right ones will stay, the wrong ones can go away. Yes. So we are playing with the energy. So what is energy? The good is the good energy, bad is the bad energy. Yes. But everything is energy. Yes, there are many ways to मुझे लगता है, मतलब आप जैसे कर रहे हो, this is kind of a messenger of God, जो relate कर पाएगा, उन तक पहुंचा पाएगा. भगवान जी खुद तो आएंगे. Exactly. So messengers चाहिए, ठीक है, right audience से connect करके. Okay, got it. So कुछ ऐसी story थोड़ी बहुत बताओ. आप इतने सारे लोगों से मिलते हो.
कैसे ये वर्क करता है? Yeah, to be honest, मैं अभी तक कुछ areas में तो I was very successful, but I would like to talk to about flaw also. Okay. But I was not succeeding in my health area. So I was admitted in the hospital. I had pancreatitis. My gallbladder sand traveled to the pancreas and I got pancreatitis pain. It was so severe. I was admitted and by the night it was so severe. Next morning I was admitted to the hospital and doctors told me that pancreatitis patient cannot take a sip of water. But I was using my power. I was using law of attraction. By evening, I started asking them for food. Something I'm feeling very hungry. Okay. So they said, my children, she cannot eat, she cannot have sip of water, so they would not allow me. So I said, मेरे को पाप तो करने दो डॉक्टर साहब से, तुमको नहीं पिलाना, it's okay, I agree with you, आपको ये इंस्ट्रक्शन मिला है. तो बॉडी के जब सेल्स ठीक होंगे तो खाना मांगेंगे. हाँ जी. तो मेरे डॉक्टर को कॉल किया, can I have something? He said, no, you can't eat that. And finally, मेरे फोर्स करने पे they gave me, I digested that. In the morning 7:30 again I wanted to eat food. Will you believe it? Using law of attraction by 12:30, all the team of the hospital came to me to know आपने ऐसा क्या किया कि pancreatitis patient खा ले. अच्छा. And from there, the journey of sickness, this is I'm talking about when it was my 50th birthday. And उसके बाद बहुत सारे इससे पहले भी हुए, बाद में भी हुए, but this was a lifesaver. And law of attraction use करके मैं pancreatitis, then insulin, blah blah. But now I'm almost negligible medicine. I was bipolar patient, 7 pills of bipolar, no medicine. But still I was struggling by my weight. तो मैंने अभी एक और मिरेकल क्रिएट किया है. बट ये जर्नी तो मैं तो काउंट करती रहूँ, नाम सुनोगे. हाँ जी. बट हाउ विल इट हेल्प यू? यू शुड आस्क मी दैट बिकॉज ऑडियंस भी यही जानना चाहेंगे बिल के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है. ट्रू. सो Yes, मतलब you have many or numerous example, I could say stories, बहुत सारे आपके खुद के experiences हैं. तो definitely एक question मैं audience के behalf पे पूछना चाहूँगी. हमारी देखो, अगर हम देखें तो हमें मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब रियलिटी सी है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है ना. जैसा शोबिज हुआ है वैसा है नहीं. तो बैक ऑफ द माइंड, और अगर हम देखें कैमरा के पीछे बिहाइंड द सीन्स टाइप कुछ और चल रहा होता है और रियलिटी कुछ और है, जैसे मूवी. तो मतलब मैं ये चाहती हूँ, अब लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, आप ऐसा क्या करो कि वो धीरे धीरे ठीक होने लगे. मतलब मैं अपना एग्जांपल, आज आपके साथ बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है बस हार्ट आउट मैं आपसे बात कर लूँ. मेरी लाइफ भी कोई बहुत इजी नहीं रही. लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स, चैलेंजेस आए, ढेरों इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा बनी. स्टार्टिंग अगर मैं कहूँ बचपन से बस ये था कि कुछ करना है और इंडिपेंडेंटली करना है. अब मैं आज आपसे जुड़ी हूँ और आज इस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, तो आप समझ पाओगे इस चीज़ को ज़्यादा जल्दी. तो मतलब इस तरीके से लाइफ स्टार्ट हुई. पढ़ाई की तो घर में सबसे बड़ी थी, तो यही लगा कि नहीं, पढ़ाई करनी है, एक एग्जाम्पल सेट करना है बाकी बच्चों के लिए. तो पढ़ाई की, उसके बाद करियर चूज़ करने की बारी आई, तो एक इंडस्ट्री चूज़ करी बिल्कुल ही डिफरेंट, नेटवर्किंग, जिसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी उस समय. 80s अगर 2000 की बात करूँ तो लोग बहुत पॉजिटिव नहीं थे. स्टार्ट करा, करियर दिया, सेल्स में आई, और दिल में हमेशा एक चीज़ थी कि कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ. और आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत अप डाउन आए, पर्सनल लाइफ में भी, करियर में भी. बहुत ऊपर तक गई, वापस नीचे आई, फिर खड़ी हुई, फिर गिरी, चलता रहा. लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि यस, मैं बिल्कुल उस जगह पहुंच गई हूँ जहाँ से मुझे स्टार्ट करना, जहाँ मुझे अपनी वे दिख रही है. तो और मैं कभी किसी से ऐसे मिली नहीं, मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया. बस मुझे लगता है ब्लेसिंग्स हैं. हाँ, मेरी लाइफ में कुछ लोग आए जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने ही स्टार्ट करा दिया इस अपॉर्चुनिटी को. मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे भी नाम लेने में कतराऊंगी नहीं. रेनू जी हैं मेरी टीम में, मेरे क्लब में बीना जी हैं. ये ऐसे लोग बनकर आए जो कि शायद ऊपर वाले ने आज मैसेंजर भेजे मेरे लिए कि नहीं, तुम करो, तुम कर सकती हो, तुम्हें करना चाहिए. तो बस ये क्लब कल्चर और लोगों से मिलना. और टुडे आई हैव 1000 फीमेल्स एसोसिएटेड विद आवर क्लब, मोर देन 2500 रियल फॉलोअर्स जो कि हमें सुनते हैं, देखते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं. तो एक चीज़ जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, पहले बहुत अप डाउन आते थे, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव पीपल मिलते थे,
मैं कई बार मनाती रहती थी, मुझे लगता था उनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अब वो एटीट्यूड चेंज हो गया मेरा, बिल्कुल चेंज हो गया। और अब अपने आप लोग आते हैं, जिन्हें रुकना है वो रुकते हैं, और जिन्हें जाना है वो एकदम चले जाते हैं, और मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। Indeed. मुझे ये बोलते हुए भी बुरा नहीं लग रहा और मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या कहोगे, ये कैसे हुआ? क्या ये ठीक है, ये गॉड की कोई इंडिकेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं? आप क्या कहोगे इसको? देखो, it all depends on your satisfaction. If you're happy, go lucky, go ahead. If you want something more, we have solutions. ओके। And for people to trust us, जैसे आपने पहले भी बात किया कि कैसे trust करें, हाँ। they have to go to our channel. ओके। And even if you trust somebody, see their credentials. See, आज का तो सब कुछ देखो crystal clear, आप कॉल हैंड से मान नहीं सकते हो. बिल्कुल नहीं छुपा And सकते। if your affirmation is you attract trustworthy, तो पहले आपको trustworthy बनना पड़ेगा. हाँ। And next thing is I have got this challenge. ओके। This is called 555 challenge. इस चैलेंज के बारे में मैं इतना ही बोलूंगी, ये और एक और है 369. अच्छा। सो ये निकोला टेस्ला ने यूज किया अच्छा। अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए. ओके। मतलब यू विल रीड देयर नेम, यू विल सी देयर अचीवमेंट्स ऑन 555 और इनको कैसे यूज किया है. मैनिफेस्टेशन जर्नल। journals. Okay. So I'm into journals now. I've got many journals. मेरे पास 1 year का journal है. इसको कैसे करना है, ये सिर्फ एक बुक नहीं है. इसके लिए मैं visualization, affirmation, I've done all mastery in them. मैं उसको, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक एक दिन में miracles क्रिएट किए हैं. इसके फर्स्ट डे में इतने miracles हुए हैं. अच्छा। तो इसके लिए बहुत वेट नहीं करनी पड़ेगी. इट्स सो क्विक बिकॉज वी आर प्लेइंग विद फ्रीक्वेंसी, ओके, प्लेइंग विद एनर्जी. सो ये दोनों आपको सिखा दिए, आपकी लाइफ भी चिंगालाला और हमारी भी चिंगालाला. बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि आजकल स्ट्रगल लाइफ की बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़, वो आराम से हम बैठे हैं काम करके रिलैक्स हो के आ गए. मतलब अगर मैं अपने पेरेंट्स को देखूं तो एक टाइम होता था 6-7 बजे बजते थे, 7-8 बजे तक मम्मी को पता होता था फादर आने वाले हैं, वो रेडी होकर अपना काम वाम करके बैठ जाती थी. आजकल वैसी लाइफ नहीं है. अगर हम जॉब्स में देखें तो इतने सारे चैलेंजेस हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, कोई टाइम नहीं है. बिजनेस में देखें तो आपको लगता है, मैं खुद अपने सिरहाने कॉपी पेन रख के सोती हूँ, क्योंकि कुछ भी याद आता है तो लिखना ना भूल जाओ, क्योंकि फ़ोन में नहीं जाना उस समय मुझे, बस मैं लिख लूँ और सुबह देखूँ, क्योंकि कुछ भी कभी भी याद आ जाता है. तो हर समय हमें आगे बढ़ना और वो चैलेंजेस से निकल कर आना, तो ये रहता है. तो उस स्पेस से, उस आराम वाली लाइफ में, मतलब अब आप जैसे हम अब करेंटली अगर हम बात करें, वो वाली लाइफ तो याद ही नहीं रह गई होगी किसी को, और हो भी नहीं सकती. तो लेकिन इजी लाइफ हर कोई चाहता है और एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं. सो आप एक कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारी ऑडियंस को भी दो. वी हैव मेनी होम मेकर्स, वी हैव वर्किंग वुमन, दे आर स्ट्रगलिंग. कुछ हमसे शेयर भी करती हैं, जैसे मेरे क्लब के साथ जुड़कर कुछ ऐसे लोग थे जो कि मेडिसिन पे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते थे, और जब से उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, हमारे साथ जाना आना शुरू किया, सर्कल वाइड करा, फ्रेंड्स ही नहीं थे, हम बात भी तो नहीं करते किसी से. चैलेंज मुझे लगता है यहाँ से शुरू होता है. एक तो ट्रस्ट नहीं करते, दूसरा हम बात नहीं करते. फ्रेंड्स बनाने बहुत ज़रूरी है, उनसे भी डरते हैं. तो जब उन्होंने जाना आना शुरू करा तो एटलीस्ट मेडिसिन छूटनी शुरू हो गई. तो दीज आर द एग्जाम्पल स्टोरीज वी हैव. तो मुझे लगता है फीमेल की लाइफ में बहुत कुछ है. तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप कहें तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू कैलकुलेट कि आज जहाँ हम हैं, जहाँ से चल के आए हैं, इफ़ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वेल दैट्स परफेक्ट. बट अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली जनरेशन्स इस स्पेस से नहीं गुजरे जिससे हम गुजरे हैं, मीन्स यू शेयर्ड योर स्टोरी, आई हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टोरी विच आर सो मिजरेबल कि twice I wanted to commit suicide. There was no scope that I should live. But आज मैं यही कहूँगी, मेरा मैसेज अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं बहुत अचीव कर चुकी हूँ उसको बहुत हद तक, that until unless we learn the gratitude, because I'm a gratitude queen, मैं हर चीज़ को, gratitude is the medicine as a doctor, और जितना gratitude आप ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी डोज बढ़ेगी, उतने आपके miracles बढ़ जाएंगे. Number 1. Number 2, अगर हम नहीं करेंगे तो how do you think our children will inculcate? Yes. मेरा ड्रीम था कि मेरे से सीखते हैं, इवन फ्री में भी जो सीखते हैं वो भी बहुत मिरेकल्स करते हैं, दे शुड कम विद देयर फैमिली, एक ही फ्रेम में पूरी फैमिली हो, एंड जस्ट फुलफिल दैट इन दिवाली.
तो जब आप बच्चे 5 साल का बच्चा ग्रेटिट्यूड जर्नल है, मिरेकल डायरी है, दैट्स व्हाट इट इज. सो आई वुड highly recommend everyone, if you are looking for some solutions which are life changing and which can make you miraculous, we are there to support you. Be it your community, be it my community, or the viewers, whosoever is listening to me. I have only one message: how I can transform your life and your generation's life. We have a solution. Yes, now we have a solution. We have Romi Makan with us. So definitely बहुत सारी चीज़ें मैं रिलेट कर पाई जो शायद मेरे मन तक थी, आज मैं आपसे शेयर कर पाई और जेन्युइनली मैंने बताया है बिना सोचे. तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि यस, ये सब होता है बिकॉज सोशल मीडिया ना बहुत बज़ और बड़ा ब्राइट बना के रखा हुआ है. कोई वीडियो दे रहा है, कोई कुछ वीडियो, कोई सोल्यूशंस. तो कई बार ऐसा लगता है कि बस पढ़कर बना दिया वीडियो, तो कितना रियल है कितना नहीं. और इतने सारे लोगों में से राइट पर्सन को चूज़ करना ना, दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज दीज डेज. ठीक है, तो इतनी जो अलग अलग वेज हैं अपने आप को ठीक करने के, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने बताया, तो आई रियली रिगार्ड दैट. बट स्टिल आप बताओ, कोई लाल किताब पढ़ रहा है, ठीक है, कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, कोई टैरो कार्ड रीडिंग की बात कर रहा है, तो आप अफर्मेशंस की बात कर रहे हो, तो व्हाट्स द राइट वे एंड सोल्यूशन. और अगर हम ये भी अफर्मेशन करना चाहते हैं कि हम अपने राइट मेंटोर के साथ लिंक कर सकें, उसके लिए क्या करें? ट्रस्टवर्दी पीपल. मेरे लिए तो ये बहुत मैजिकल काम किया. ओके, यू आर अ राइट पर्सन, आई अट्रैक्टेड यू. हाँ जी, ओके. मैसेज यही है कि हमें अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो कंप्लेंट्स हैं. हाँ. So if you are vibrating on a frequency of complaints, you will attract more situations where you will complain more. Okay, number one. Number two, if you are not complaining and your gratitude, you have one moment. Either you can complain or you can pay gratitude. If you are not complaining, your paying gratitude will attract miracles in your life. So we should be, thankful for everything what we have. Yes, even for the negative. Because that has come to teach you that you don't have to be there. So I learned how to pay gratitude for even negative part of life. So that has taught you something. Yeah. That had been your best teacher. So nothing wrong. Be grateful to the teacher. In short, you have to be, always in this format. Thankful to everything. जो भी आपकी लाइफ में आया है, किसी रीज़न से आया है, कुछ सिखा के जाएगा, कुछ दे के जाएगा. इसको आप ऐसे नहीं जाने दे सकते. सो बिलीव इन योर सेल्फ. लाइफ में अप डाउन आएंगे और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चैलेंजेस से निकल रहे होते हैं. तो मुझे लगता है उस नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने आप को पॉजिटिव रखना, राइट एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई तो उससे बात करो, नहीं है तो ढूंढो, मिल जाएंगे. दे आर न्यूमरस पीपल. आज हम इनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा. नहीं तो आप, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आप बात तो करो, मिलेगा सोल्यूशन. और हमेशा ठीक रहो. और आज हम भी अपनी ऑडियंस के लिए यही विश करेंगे. और मैं कहूँगी, आज आप यहाँ हैं, मुझे सुन रहे हैं, इन्हें सुन रहे हैं, इसका भी कोई रीज़न होगा, कुछ तो मैसेज आपके लिए भी है. सो सारी मिजरीज दूर हो और ढेर सारे मिरेकल्स आपकी लाइफ में आए और कुछ भी चैलेंज हो. सो वी हैव मिसेस रोमी माकन विद अस. थैंक यू सो मच. इट वाज सो लवली टू हैव यू हियर. Totally likewise. सीरियसली इट्स अमेजिंग. आज का पॉडकास्ट बहुत दिल के करीब है, बड़ा ही मज़ेदार रहा. एंड डेफिनेटली और भी ऐसे पॉडकास्ट के लिए आप फॉलो कीजिए हमें और यहाँ पर आते रहिए और ऐसे ही ढेर सारी मेमोरीज बनाते रहिए. थैंक यू सो मच. टाइम टू से बाय. Bye. Thank you.